اس وقت شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ پہلا چیلنج جو ہے جس سے پوری قوم نبرد آزما ہے وہ ہے کرونا کا چیلنج، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو جو ہندوستان کا ویرینٹ ہے اس سے محفوظ فرمائے، کیونکہ وہاں جو کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں 4000 سے زیادہ اموات روزانہ ہو رہی ہیں اور لاکھوں لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اس کی ہمیں پریشانی بھی ہے اور دکھ بھی ہے، کیونکہ انسان جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، مسلمان بھی متاثر ہو رہے ہیں اور انسان بھی متاثر ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر مقبوضہ کشمیر میں جو ڈبل لاک ڈاؤن ہے، ایک کرونا کا اور دوسرا ملٹری سیج کا، ان کے لیے بھی اس عید الفطر پر ہمیں خاص دعا اور اپنی ذہن میں ان کے لیے ہمیں گنجائش پیدا کرنی ہے۔ گزارش ہوگی کہ اگلے 2 ہفتے آزمائش کے ہیں، پوری قوم برائے مہربانی اپنے لیے، اپنے کنبوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے احتیاط برتیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ دوسرا چیلنج جو ہم فیس کر رہے ہیں وہ ہے 27 رمضان کو جو آپ نے دیکھا قبلہ اول پر جس بے دردی سے چڑھائی کی گئی، وہاں سٹن گرینیڈز کا استعمال کیا گیا، واٹر کیننز استعمال کی گئی، لاٹھی چارج کیا گیا، ربر بلٹس فائر کی گئی، اور لوگوں کو، نمازیوں کو، نہت فلسطینی مسلمانوں کو اور جو بھی مسجد الاقصی میں موجود تھے انہیں شہید کیا گیا، اور بہت سے زخمی بھی ہوئے۔ اس کے بعد غزہ میں جو بمباری ہو رہی ہے اور جس طرح زبردستی شیخ جراح میں اس نیبرہڈ میں وہاں کے لوگوں کو بے دخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایوکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس نے پوری انسانیت کو، امت تو ہے ہی ہے، میں سمجھتا ہوں میں نے بہت سے میسیجز دیکھے ہیں ان آرگنائزیشنز کے جو کہ انٹرنیشنل نوعیت کی ہیں، وہ بھی متاثر ہوئی ہیں اور وہ بھی افسردہ ہیں کہ یہ جو بربریت کا کھیل ہے اسے فی الفور بند ہونا چاہیے۔ کل رات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے صدر اردوغان کی ٹیلی فون پر تفصیلی گفتگو ہوئی اس موضوع پر۔ وزیر اعظم پاکستان کی سعودی عرب کے شاہ سلمان جو ایک امہ میں خاص اہمیت رکھتے ہیں، ان سے بھی تفصیلی گفتگو ہوئی، ان کا شکریہ بھی ادا کیا، اور اس حساس مسئلے پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ میری ذمہ داری لگائی گئی کہ میں ترک وزیر خارجہ سے رابطہ کروں۔ رات لیٹ نائٹ مجھے وزیر اعظم کا پیغام ملا، اور انشاءاللہ آج میں اپنے بھائی وزیر خارجہ ترکی میولوت چاوشولو سے بات کروں گا، کیونکہ پاکستان نے جو ایک ہنگامی اجلاس ہوا تھا جدہ میں OIC کے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیوز کا، اس میں بڑا واضح موقف اختیار کیا ہے، بڑا 2 ٹوک موقف اختیار کیا ہے، اور پاکستان دیگر OIC ممالک بشمول ترکی یہ تجویز پیش کر رہا ہے، اور عرب لیگ نے بھی ایک ہنگامی اجلاس میں اپنی تجاویز سامنے رکھی ہیں، اور ہم یہ تجویز پیش کر رہے ہیں کہ OIC کا ایک منسٹریل اجلاس بلایا جائے تاکہ پہلے اس مسئلے پر
जो 57 मुस्लिम ममालिक हैं उनको यकजा किया जाए और उनको यकजा करने के बाद इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में ले जाया जाए। आपके इल्म में है कि सलामती काउंसिल में भी इस पर बात हो चुकी है और मजीद बात का इम्कान है, लेकिन हम समझते हैं कि जनरल असेंबली इसका एक मुनासिब फोरम है। चुनांचे पाकिस्तान और तुर्की ने यह फैसला किया है कि मिलकर हम जनरल असेंबली के इस इजलास को मुनक्किद करने के लिए हम एक तहरीक पेश करेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरी दुनिया को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को मोबिलाइज करें कि फिल फॉर ये जो वहां जबर हो रहा है और जुल्म हो रहा है इसे बंद होना चाहिए। फिल फॉर इसका नोटिस लेना चाहिए, बेदखलियां बंद होनी चाहिए और जो वहां की सूरत हाल जो है मजीद बिगड़ती जा रही है उसके तदारुक के बारे में दुनिया के हुक्मरानों को मिल बैठकर सोचना होगा और एक देर पा अमन और हल के लिए सर जोड़ना होगा। तीसरा चैलेंज जो इस ईद उल फितर पर पूरी कौम को दो चार है वो है अफगानिस्तान की सूरत हाल। अफगानिस्तान का जो अमन का अमल है वो आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान का जो उसमें किरदार है और जो रोल है उसको पूरी दुनिया ने तस्लीम भी किया है और उसको सराहा भी है। पाकिस्तान की कोशिश है कि वहां जो इंट्रा अफगान डायलॉग है जिसकी शुरुआत दोहा से हुई पीस एग्रीमेंट की शक्ल में, कमेंसमेंट ऑफ डायलॉग की शक्ल में, रूल्स एंड प्रोसीजर्स पर इत्तफाक की शक्ल में वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे। खुशाइंद बात है कि इस ईद उल फितर पर तालिबान और अफगान हुकाम के दरमियान एक मुआहिदा और अंडरस्टैंडिंग हुई है कि ईद के दिनों में कोई कार्रवाई या कोई वाकया हम नहीं करेंगे और मिलके हम एक दूसरे से ताउन करेंगे। ये एक मुस्बत पेशरफ्त है। पाकिस्तान की ख्वाहिश और कोशिश है कि ये जो पेशरफ्त है मुस्तकिल बुनियादों पर कायम हो जाए और वो जो इनखला हो रहा है यूएस ट्रूप्स का जिसका आगाज हो चुका है और सितंबर 2021 तक उसने मुकम्मल होना है, इस असना में जो पीस प्रोसेस है वो आगे बढ़ पाए ताकि कोई खला पैदा ना हो और वहाँ अफगानिस्तान किसी दाखिली इंतशार का शिकार न हो और वो महफूज हो जाए और उसकी वजह से हमारी सरहदें भी महफूज हों, अमन लौटे और अमन के बाद ये जो लाखों अफगान महाजरीन अरसे दराज से पाकिस्तान में मुकीम हैं ये बाइज्जत तरीके से अपने घरों को लौट सके और अमन के बाद जो रीजनल कनेक्टिविटी के जरिए माशी बेहतरियां पाकिस्तान को पहुंच सकती हैं, इस खित्ते को पहुंच सकती हैं, वो आगे बढ़ सकें। तो ये 3 चैलेंजेस हैं जिन चैलेंजेस के अंदर ये ईद उल फितर जो है वो मुनक्किद हो रही है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इन तीनों में हमारे लिए, उम्मह के लिए और इंसानियत के लिए आसानी पैदा फरमाए। चंद रोज कबल मकरान और केच के इलाके में ईरान की जानिब से कुछ मिसाइल फायर किए गए हैं, उसके मुतालिक कोई ईरान के साथ अल्लाह के फजल करम से ताल्लुकात में बहुत बेहतरी है, गर्मजोशी है। मैं अभी तेहरान से होकर आया हूँ, मेरी जवाद ज़रीफ साहब से, उनके सदर से तफसीली गुफ्तगू हुई है। तेहरान और इस्लामाबाद अफ़गानिस्तान के मसले पर, अमन के मसले पर, अपने ईरान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसको एक बॉर्डर ऑफ पीस बरकरार रखने पर मुकम्मल इत्तफाक है। अफगानिस्तान की जानिब से सर ये पाकिस्तान की जो फेंसिंग जो लगाई जा रही है वहाँ पर अटैक हुआ, 4 पाकिस्तानी जवान शहीद हुए, इसके बारे में, और दूसरा खासतौर पर अभी जो फ़लस्तीन का मामला है इस पर OIC का भी कोई मीटिंग कॉल करने का आप लोगों का कोई है सर ऐसा? आपने मेरी बात में गालबन सुनी नहीं, मैंने तफसीली बात की है, तो जरा गौर फरमाते हैं ना, यही तो मैंने कहा है। पहली बात बॉर्डर फेंसिंग की,
देखिए, बॉर्डर फेंसिंग का जो हमारा काम है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और उससे बॉर्डर को रेगुलेट करने में हमें कदरे आसानी होगी, नंबर एक। नंबर दो, इसमें भी कोई शक नहीं कि जब हमारे जवान बॉर्डर को फेंस करते हैं तो वहाँ से टीटीपी के और वो लोग जो यहाँ मुस्तकिल अमन नहीं देखना चाहते, जिसको हम स्पॉयलर्स कहते हैं, वो अफगानिस्तान के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, वो इस किस्म की कार्रवाइयाँ करते हैं, हमारे जवानों को, हमारे अफसरों को निशाना बनाते हैं और शहादतें हुई हैं। आपने दुरुस्त निशानदेही की है। हम अपने प्रोग्राम को हमने जारी रखा हुआ है, दबाव के बावजूद, शहादतों के बावजूद पाकिस्तान के अज़म में कोई, आपने देखा, कोई उसमें लचक नहीं है। हम आगे बढ़ रहे हैं और हम सलाम पेश करते हैं उन शहदा को जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके आपको और मुझे महफूज करने की कोशिश जारी रखी। अक़वाम मुत्तहिदा का रोल कश्मीर के मसले पर मायूस कन रहा है और अब पाकिस्तान की कोशिशों के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा ने वो रिजल्ट नहीं दिए जो मसला कश्मीर में होने चाहिए। अब फ़लस्तीन के मसले पर आप तवक्को रख रहे हैं कि देखिए गुजारिश, देखिए मतलब भाई, जब गुजारिश ये है, जो फ़लस्तीन की कैफियत है, जो फ़लस्तीन पे करारदादें हैं अक़वाम मुत्तहिदा की, OIC के आपके सामने हैं। जो कश्मीर पे सलामती काउंसिल की करारदादें हैं, OIC की करारदादें हैं, वो आपके सामने हैं, ठीक, वजाहत से। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दोनों मसले हल तलब हैं, जुस्तजू जारी है और उस जुस्तजू को जारी रखना हमारे मफाद में है। हम तन्हा इन चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकते। इन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हमें कंसेंसस बिल्डिंग दरकार है। उस कंसेंसस बिल्डिंग के लिए हमें उम्मा को भी मोबिलाइज करना है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी मोबिलाइज करना है। आपने इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करना है। आप देख रहे हैं कि कल लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में जो लोग वहां गए, वो पाकिस्तानी तो नहीं थे, हो सकता है पाकिस्तानी भी हों उसमें, फ़लस्तीनी भी हों, लेकिन उसमें बहुत से वो लोग थे जिनका ताल्लुक बरतानिया से था। जब तक ये तबका, जब तक वो 65 मिलियन मुसलमान जो इस वक्त यूरोप के मुल्कों में रह रहे हैं, जब तक वो हरकत में नहीं आते, हमारी आवाज को वो तक़वियत नहीं मिलेगी। चुनाचे मैं आज आपके जरिए उन 65 मिलियन मुसलमानों से दरख्वास्त कर रहा हूं जो यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में रिहाइश पजीर हैं, उनकी शहरियत भी उनके पास है या वो मुलाजमतों के सिलसिले में, रोजगार के सिलसिले में वहां वो क़याम कर रहे हैं, कि पुरअमन तरीके से अपने अपने इलाके के जो मुअस्सिर लोग हैं, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट और बरतानिया की पार्लियामेंट, अमेरिका के मुसलमान खतूत लिखें US कांग्रेस के मेंबरान को और उनको बावर कराएं, उनकी तवज्जो मफजूल कराएं जो फ़लस्तीन में हो रहा है और जो कश्मीर में हो रहा है, और मिलकर ये एक जॉइंट एफर्ट जो है उस पर हमें आगे बढ़ना है। हमारे लिए क्या ज़रूरी है? हमारे लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं मेरी नज़र में। नंबर 1, हमारे 100 इख्तलाफ हो सकते हैं कश्मीर के मसले पर और फ़लस्तीन के मसले पर, तारीखी तौर पर यह कौम मुत्तफिक रही है। इस इत्तफाक को हाथ से ना जाने दीजिए, ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं होगा। सियासत होती है लेकिन इस पे सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। फ़लस्तीन के मसले पर पूरी कौम यकजा है, आज से नहीं, कई दहाइयों से। मुख्तलिफ अदवार आए। आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इससे पहले नून लीग की हुकूमत थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। जितनी भी पार्टियां आई हैं, फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले पर यकसुई से सब ने आवाज़ बुलंद की है और आज उस इत्तफाक की पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा शाह साहब, 2-3 माह कबल सऊदीया के साथ हमारे ताल्लुकात इस नहज पे थे कि हमें चाइना से अरबों डॉलर ले के तो सऊदीया को वापस करने पड़े, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2 माह के बाद दोबारा जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको समझना चाहिए कि एक अंसर ऐसा है जिसने बाकायदा सऊदी अरब और पाकिस्तान के अंदर जो जिसे कहते हैं ना रखना अंदाजी की कोशिश की। होते हैं, आपका ख्याल है कि जो आपके मुखालिफिन हैं वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, वो खुश हैं,
اگر آپ کے تعلقات میں گرم جوشی ہوتی ہے، قربت ہوتی ہے، کیا ان کو چین ملے گا؟ نہیں ملے گا. تو وہ کوئی نہ کوئی کوشش، کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی، ڈس انفارمیشن آپ کے سامنے ہے. یہ جو EU ڈس انفارمیشن لیب ہے، وہ 7.5 جو جعلی NGOs اور تنظیمیں بنائی گئی تھی، کس کام کے لیے؟ ہاں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کام ہی تھا فیک نیوز اجاگر کرنا، غلط فہمیوں کو جنم دینا. اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنی کوششوں میں ہماری کوششیں جاری تھی. ہماری کوشش تھی کہ امہ میں تقسیم نہ ہو. ہماری کوشش تھی کہ اگر امہ کے اندر اختلافات ہیں تو وہ گفت و شنید سے طے ہوں. ہماری کوششیں کامیاب ہوئیں. آپ نے دیکھا کہ GCC کے اندر جو ایک تناؤ تھا وہ آج ختم ہو چکا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں قطر کے ساتھ تعلقات بحال ہو چکے ہیں. ہماری کوشش تھی کہ ایران کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ گفت و شنید سے دور ہوں. آج الحمدللہ سعودی عرب بھی اور ایران دونوں اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ شروعات ہو چکی ہے. منزل لمبی ہے. برج بلڈنگ کے لیے، کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو میٹ کرنے کے لیے وقت لگے گا. ہمیں کوئی ہمیں کسی خیالی پلاؤ کو نہیں پکانا، لیکن ایک آغاز ہوا ہے. وہ آغاز جو پاکستان چاہتا تھا، نمبر 1. نمبر 2، جو مشرق وسطیٰ کے حالات ہیں، جو امریکہ کی نئی ایڈمنسٹریشن کا موقف آیا ہے یمن پر اور دیگر چیزوں پر، اس سے ایک فضا میں ایک تبدیلی آئی ہے. سعودی عرب اور پاکستان دونوں اس چیز پر متفق ہیں کہ ہم آزمائے ہوئے دوست ہیں. ہم ہر آڑے وقت میں ایک دوسرے کے کام آئے ہیں اور مل کے چلنے میں